Welcome, sir. Good. Good afternoon, sir. Good afternoon. विकास भारद्वाज जी। Yes, sir. विकास भारद्वाज जी, अपना इंट्रोडक्शन देने के पहले आप ये बताइए कि रिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं Yes, sir. तो टू थिंग्स यू हैव टू आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन रिट्स, एंड द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, Okay, sir. ठीक है, विच हैज़ ब्रॉडर रीच इन टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ रिट्स. Okay, sir. डिड यू गेट माई क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए आंसर दीजिए. Sir, नाम क्या बताया था आपने? विकास भारद्वाज. Sir, REITs, sir, basically it is used to safeguard our fundamental rights, and so that it can't be violated and enforce it properly. There are basically 5 REITs. इट कैनॉट बी वायलेटेड. Yes, sir, it cannot be violated because for that only Supreme Courts and High Courts takes measure based on the Article 232 that exercised by Supreme Court Okay, and okay. Article 226 by High Court. So there are 5 types of REITs. No. Actually, I'm not asking you the type of it. This question is straight simple. Yes. Define REITs and between High Court and Supreme Court, which has a broader reach for issuance of it. So in case of REIT issuing, sir, High Court has the broader reach because it can issue on both. Sorry, sir. High Court has the power of issuing REITs on the basis of fundamental right violation, whereas sorry, sir. Okay, just tell me, in our original text of our constitution, how many fundamental rights were there? Means originally, how many fundamental rights were there? Number. Sir, originally there were 7 fundamental rights. Which one was the 7th? Sir, right to property. Where it appeared now? Where it is appearing now? Sir, it is appearing on legal rights. Legal rights. Very nice. Under which article of Indian Constitution? So, article. Sorry, I'm confused a bit, sir. On that. Okay, no issues. Who is the chairperson of Jharkhand State Electricity Regulatory Commission? Sorry, sir. Okay. विकास भारद्वाज जी, Yes, sir. आपने बीए किया है इंग्लिश ऑनर्स. Yes, sir. ओके, तो आप अपने कोई फेवरेट पोएट हैं आपके इंग्लिश में? Sir, it's William Wordsworth and William Shakespeare, sir. शेक्सपियर. Yes, sir. नॉवल? Sir, novel Macbeth. मैकबेथ. अच्छा, कोई पोएम जो आपकी फेवरेट है, आप बता सकते हैं 2-4 लाइनें? Sir, is basically, sir, sonnet 116, Okay. in which he has talked about the marriages of the two mind. कैन यू रिसाइट द पोएम? Sorry, sir. डू यू रिमेंबर एनी अदर पोएम विच इज़ योर फेवरेट? 4 lines. You can say. Sir, I'm unable to recall it right now, sir. ओके, फाइन. टेल मी वन थिंग, कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? Sir, there are टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स? 24 high courts, sir. 24 high courts? Sir, 21. 21 हाई कोर्ट्स? Yes, sir. आर यू श्योर? So, sir, I'm not sure. ठीक है. सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? Sir, Calcutta High Court. कैलकाटा हाई कोर्ट. वेरी गुड. नाउ टेल मी, हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या है? Sir, 62 years. सुप्रीम कोर्ट के जज का? 65 years. और सिविल कोर्ट के जज का? 60 years, sir. 60 ईयर्स. Yes, sir. ओके. एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र का अथॉरिटी किसके पास है? Sir, President, Honorable President. प्रेसिडेंट का. Yes, sir. और अगर हाई कोर्ट के जज रिजिग्नेशन दे रहे हैं, वो किनको? Sir, to the President. टू द प्रेसिडेंट ओनली. ठीक है. अब मुझे एक लास्ट बताइए, 3 तलाक जो है इलीगल है, Yeah, sir. ये जजमेंट 3 तलाक Yes, sir. इलीगल है, ऐसा जजमेंट कौन से हाई कोर्ट ने दिया है? किस हाई कोर्ट का ये जजमेंट है? Sir, I'm not aware of that. ठीक है. अब मुझे एक लास्ट सवाल बताइए आप कि वो पहला हाई कोर्ट कौन सा है जो पेपरलेस हुआ है? फर्स्ट. Sir, I don't know, sir. ठीक है. ओके, इंटरव्यू ख़त्म. फीडबैक टाइम. भारद्वाज जी, विकास भारद्वाज जी, राइट? आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ सही है. सर ने कुछ पूछा था आपसे, Yes, sir. आपने जवाब सही दिया. सर ने पूछा
24 हाई कोर्ट नहीं नहीं, वो रीड नहीं, रीड किसकी ब्रॉडर रीच है? हाई कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, Yes, यही बोलना था, Yes, दोनों में से कोई है। Yes, sir. आप उसमें घुस गए और अपने आप को गलत साबित कर दिया। Yes, sir. मुझे अगर हाँ बिल्कुल सही है ना, आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। ज़्यादा एक्सप्लेन करने से ये नहीं होगा कि यू हैव मच नॉलेज। हो सकता है कि आप फंस जाए वहाँ पे, आप गलत बता दें। तो अगर आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, किसका रीच ज़्यादा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट, खत्म। अगर वो फिर पूछे देन यू नीड टू एक्सप्लेन, है ना। और बाकी चीज़ें आप कॉन्फिडेंट है, सब कुछ सही है, नॉलेज आप बढ़ाइए, वो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। सब कुछ बढ़िया है, आपके बारे में कुछ गलत नहीं है। बस वही है कि जो पूछा जा रहा है ना, टू द पॉइंट थोड़ा बोलिए। इंटरव्यू पैनल में क्या है, ज़्यादा नहीं बोलने का है। ज़्यादा बोलिएगा खुद में इंगेज हो जाइएगा सब लोग। होता क्या है कि हो सकता है कि इंटरव्यू 3 मिनट का चले, 4 मिनट का चले, और हो सकता है कि इंटरव्यू 30 मिनट का चले। तो हम लोग को सही एटिक्वेट, सही हैबिट, सही एक्शन को मेंटेन इसलिए करना पड़ता है कि इफ़ द पैनलिस्ट इंगेज यू फॉर मोर देन 10 मिनट्स, इट मे बी अराउंड 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, आपके बॉडी का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके नॉलेज का सब कुछ वो निकाल सकते हैं बाहर। 2-3 मिनट में बहुत कुछ नहीं पकड़ सकते हैं आपको। आप किस तरीके से घुस रहे हैं, भाई जा रहे हैं, इट्स ओवर। लेकिन अगर 20-25 मिनट का इंटरव्यू चल जाता है तो फॉर दैट रीज़न आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने आप को बिल्कुल स्टिक कर दीजिए टू द पॉइंट। रिट पूछे, बस रिट बोल के चुप हो जाइए। किसका ज़्यादा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आप बोल कर चुप हो जाइए। अगर वो लोग घुसते हैं कि बताओ अंदर की बात बताओ, 226-32 और इरेलीवेंट। आई डिडंट आस्क 226 स्टैंड फॉर वॉट एंड 32 वॉट, बस हम जो पूछे थे वो बताइए। और प्रश्न के बाद आपने हाथ को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा मूवमेंट आपका तेज होने लगा, ठीक है, क्योंकि इतना बढ़िया आपका फेस है, इतना अच्छा फिजिक है, शर्ट पहने हुए हैं, बिल्कुल यू आर परफेक्टली लुकिंग लाइक ए मिलिट्री मैन। ओके, सो इसको आप एड ऑन करिए। आपके जो फीचर्स हैं, भगवान जो आपको रूप दिया है, इतना बढ़िया फिजिक है, इसको आपको ऐड कर लेना होगा, ठीक है। बाकी सब सही है, बहुत कुछ आपको इम्प्रूव कराने के लिए नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। बाकी ऑल द बेस्ट। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? रामगढ़ सर। कहाँ? दिल्ली? रामगढ़, ठीक। चलिए, भगवान करे आप वहाँ पर हो जाइए। कितना एज है आपका? सर 24 है। 24 है, तो डेफिनेटली आप और भी आगे सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करिए, Sir, I'm doing that. ठीक है। और अगर आप रामगढ़ में इफ़ यू आर अपॉइंटेड तो डेफिनेटली यू विल गेट बहुत ज़्यादा टाइम फॉर दिस लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा है कि आप रामगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।